Bismillahirrahmanirrahim. So I am going to teach you the bottleneck model, which is one of the mathematical analysis of the flexible manufacturing systems. Chapter number 19 in this edition's flexible manufacturing cells and systems. And if you remember, we also covered some of the terminologies and symbols. So this PJ is what? Remember, PJ is equal to 1. And this is the PJ which is showing the varieties. All of the varieties, the percentage, the fraction of the varieties in the production, sum of those all is equal to 1. ठीक है. This is the product mix कि कितना mix है production में. एक part जो pencil है वो 30% है production में, 70% जो है ना वो pen चला रहे हैं production में, line में. तो pen का होगा, pen अगर p j is equal to 1, 1 is for pen, so p1 will be equal to 0.3. The remaining 0.7 will be the for the pencil या pen जो भी है. So workstation and servers, what are the workstations and servers? So workstation is the full one station, working station, and servers are the number of machines in workstations. Process routing. Process routing is the sequence, या हम कह सकते हैं ordering of the parts on the machine. If you remember, the TCIJK is the processing cycle time of the part. It is the total time that a production unit, one unit, occupies a given workstation, not counting any waiting time at the station. If you see this example, that is TC2. अगर इस example को हम check करें, ये जो example है, this is TC2A4 is equal to 8.5 minutes. The process plan J is unique to the part J. अच्छा, इसमें अगर ऊपर से देखें यहाँ से, for example, the fourth operation in the process plan for part A is performed on machine 2 and takes 8.5 minutes. Thus, TC2A4 is equal to 8.5. अगर आप ऊपर देखें, the subscript I refers to the station, J refers to the part, K refers to the sequence of the operation, and TC is the cycle time. K क्या कर रहा है? K operation refer कर रहा है, J जो है ना ये part show कर रहा है, और I station show कर रहा है. So TC2A4 means that the fourth operation, A part और second machine है, is equal to 8.5 minutes. So part handling system, if you remember, we also discussed the material handling system used to transport parts or product within the FMS. It can be considered to a special case of the workstation. We can say that it is the special case of the workstation. For example, we have 3 workstations, then we are considering part handling as the 4th workstation. We can consider. That's the reason it is called n+1. N is the number of workstations, and the +1 means that it is considered as the +1 workstation of the system. Part handling जो है, part handling को हम एक वर्कस्टेशन कंसिडर कर सकते हैं. अगर सिस्टम में 3 मशीनें हैं तो 4th हमारे पास मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम होगा, वर्कस्टेशन होगा. So that's the reason we can see that servers in the regular workstations, so let Sn plus 1's the number of carriers in the part handling system. So S are the number of servers, you can say the number of carriers or the number of AGVs in the material handling systems are denoted by Sn plus 1. Transport time. Transport time is the time which is taken by the AGVs or the material handler, or the transport time, repositioning time from one station to the other station, that is TR. Operational frequency. This is what I told you, that the frequency of the parts on the same workstation or same machine is called a frequency. How frequent the part is coming to the workstation. The operation frequency is defined as the expected number of times a given operation in a process routing is performed for each work unit. For example, an inspection might be performed on a sampling basis,
वंस एवरी 4 यूनिट, हर 4 यूनिट के बनने के बाद जो है ना एक दफ़ा सैम्पलिंग सॉरी वो इंस्पेक्शन होती है। तो इंस्पेक्शन एक वर्क स्टेशन है, तो ये दोबारा दोबारा यूज हो रहा है। हैंस द फ्रीक्वेंसी फॉर दिस ऑपरेशन वुड बी 0.25। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.25। 4 पार्ट्स के बाद जो है ना एक दफ़ा इंस्पेक्शन हो रही है, तो इसलिए वो 4 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर हर पार्ट को चेक किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल इन अदर केस द पार्ट में हैव एन ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जांपल फॉर ए कैलिब्रेशन प्रोसीजर इट में हैव टू परफॉर्म मोर देन वंस ऑन एवरेज टू बी कंप्लीट। एक पार्ट पे एक से ज्यादा इंस्पेक्शन हो रही है, तो इसीलिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोर देन 1। अगर एक पार्ट पे एक दफा इंस्पेक्शन हो रही हो तो इंस्पेक्शन ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। FIJ operation frequency for operation K in a process plan J, its station I. Now, FMS operational parameters. Let's come to the workload. This is the formula for the workload. Again, I am telling you, workload is the time taken by the part on each station, on each operation, for each process plan. You may say, एक स्टेशन पे एक पार्ट जो है ना, एक स्पेसिफिक पार्ट एक स्टेशन पे एक खास प्रोसेस पे कितना टाइम लेता है, that is the workload. If you see, workload is the average workload for station I. This is for the station I. T से IJ के प्रोसेसिंग टाइम या हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, FIJ के ये भी पढ़ चुके हैं, और ये जो पार्ट मिक्स है, जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, द पार्ट हैंडलिंग सिस्टम स्टेशन जो N+1 है, जिसको हम पार्ट हैंडलिंग स्टेशन कहते हैं, ये स्टेशन जो है हमने प्रीवियसली जो है ना इसको डिफाइन कर लिया। द वर्कलोड ऑफ द हैंडलिंग सिस्टम, मीन ट्रांसपोर्ट टाइम जो है ना क्या होगा, उसके लिए जो नंबर ऑफ स्टेशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ AGVs वी कैन फाइंड बाय दिस प्रोसेस। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैंने एक एग्जांपल भी आपको पढ़ाई थी कि ये हम किस तरह फाइंड करते हैं। -1 क्यों आता है? -1 इसलिए आता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 स्टेशन हैं तो उनके दरमियान 2 AGVs आमतौर पर काम करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो 3 - 2 सॉरी 3 - 1 2 आ जाएगा, इसीलिए -1 है। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दोबारा मैंने आपको एक दफ़ा रिवाइज करा दिया है। System performance matrices. We can check the performance of the system by using the matrix in which there are some performance measures. सबसे पहले जो है हमारे पास वो है production rate और capacity of the bottleneck station. Okay, the analysis for the FMS includes the bottleneck station, but if you remember, the bottleneck station is the station where there is maximum utilization. If you remember, मैंने आपको बताया था कि what is bottleneck station. अगर सीक्वेंस है FMS में क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक असेंबली लाइन है और एक सेल है, उसमें पार्ट ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जिस वाली स्टेशन पे सबसे मैक्सिमम टाइम है 1 घंटा लग रहा है, इसमें आधा 40 मिनट्स लग रहे हैं, इसमें 50 लग रहे हैं। सो दिस इज हैविंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड ए बोटलनेक स्टेशन। अगर हमारे पास बोटलनेक स्टेशन की परफॉर्मेंस फाइंड हो जाए तो हम FMS की परफॉर्मेंस फाइंड कर सकते हैं। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड ए बोटलनेक मॉडल, क्योंकि इसमें हमारे पास जो बोटलनेक होता है उसकी अगर हम परफॉर्मेंस फाइंड करते हैं तो वही ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है। हो गया, मैंने आपको ये चीज़ बड़े क्लियर तरीके से समझाई भी थी। एनी हाउ, फिर भी आप समझ सकते हैं इसको कि इसका साइकिल टाइम क्या होगा जो इसका होगा, बिकॉज इट इज टेकिंग मैक्सिमम टाइम। दिस इज द ओके फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं, दैट इज द प्रोडक्शन रेट फॉर द bottleneck station, which is equal to the number of servers divided by workload of the bottleneck station. Number of servers on the bottleneck divided by number of the workload on the bottleneck station. So it will give you the production rate of the bottleneck station. So RP steric is the maximum production rate of all the part style produced by the system, which is determined by the capacity of the bottleneck station. Simple. Where S steric are the number of servers at the bottleneck station and WL steric are the workload at the bottleneck station. So first of all, you need to, for example, if you have some production system in which there are different workstations, then first of all you need to find which workstation is a bottleneck station. उसके बाद आप आगे जाके bottleneck analysis कर सकते हैं, मॉडल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं FMS में कि पूरे सिस्टम की जो है ना प्रोडक्शन रेट क्या होगी, उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ द bottleneck station.
आप जब बोटलनेक स्टेशन फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी आरपी स्टेरिक भी फाइंड कर सकते हैं। आरपी स्टेरिक के बाद भी जो है ना आप आरपीजे हर एक पार्ट का भी फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्शन रेट, अगर आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, मिक्स पार्ट्स हैं। यूटिलाइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूलाज। ये फार्मूलाज गिवन हैं, इसकी स्पेसिफिकली पार्ट का भी प्रोडक्शन रेट फाइंड कर सकते हैं, फुल सिस्टम का प्रोडक्शन रेट भी फाइंड कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन फॉर ईच स्टेशन वर्क स्टेशन आई आप फाइंड कर सकते हैं। एवरेज यूटिलाइजेशन ऑफ द होल सिस्टम कैन बी फाइंड बाय दिस फार्मूला, n+1 इज बिकॉज इसमें एक जो है ना यूटिलाइजेशन उसकी भी आ जाती है, जो मटेरियल हैंडलर है, हैंडलिंग सिस्टम है, उसकी भी आ जाती है। यहाँ पे आपको ये फार्मूला थोड़े से अजीबोगरीब से लग रहे हैं। व्हेनेवर वी कम्स टू द न्यूमेरिकल एग्जांपल इट विल बी वेरी इजी एंड यू कैन इजीली बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। यहाँ इतना कोई इसमें मसला नहीं है। सर्वर का भी आप फाइंड कर सकते हैं एवरेज यूटिलाइजेशन। इसके बाद है बिजी सर्वर्स। बिजी सर्वर्स का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ बिजी सर्वर्स एट ईच स्टेशन इज ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने सर्वर्स, फॉर एग्जांपल एक वर्क स्टेशन है उस पर 5 सर्वर हैं, 4 उसमें बिजी होते हैं, एक आइडल होता है, then you can easily find from here the busy server utilization से आप find कर सकते हैं। All of the servers at the bottleneck station are busy at the maximum production rate, but the servers at the other stations are idle some of the time। bottleneck station पे तो सारे के सारे बिजी होंगे ना, क्योंकि उस पर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। अदर स्टेशन में कुछ ना कुछ सर्वर्स बिजी नहीं होते, तो आप यहाँ से वो फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। If you see that utilization is the ratio between, ऊपर वर्कलोड है, नीचे नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, यहाँ पर उल्टा है, ऊपर सर्वर है, नीचे वर्कलोड है। ये डिफरेंस है बिजी सर्वर में, यूटिलाइजेशन में। Okay, let's come to this example number 19.4. You can easily understand the different formulas. आप easily समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ये bottleneck मॉडल पे एग्जाम्पल 19.4 है, और इसको अगर आप समझें तो आप समझ सकते हैं इसको कि व्हाट इज गोइंग ऑन। आप मुझे जस्ट एक मिनट दें, मैं एक ज़रूरी मीटिंग है उसमें एक उनको कहता हूँ कि मैं कोई 15-20 मिनट बाद ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? Okay, sir. Okay, so this is example number 19.4, the bottleneck model. A flexible manufacturing system, right, must be given of a load and load station. So one station is here, load and load, maybe load and load 2 stations, 2 machines, machining workstations, 2 उसमें मशीनें हैं। Station 1 is the load and load with 1 server, server is equal to 1, S is equal to 1 for first station, load and load. Station 2 performs milling operation and consists of 3 identical CNC milling machines. So station 2 is having servers. How many servers? 3. ये 3. Station 3 performs drilling and consists of 2 identical CNC drilling machines. So 2 servers are there on station number 3, which is drilling. The stations are connected by a part handling system that has 2 carriers. और जो 4th हमारे पास स्टेशन है, जिसको हम N+1 कहते हैं हैंडलिंग सिस्टम, उसमें 2 हमारे पास कैरियर्स हैं। The mean transport time is 2.5. ट्रांसपोर्ट टाइम इज द जो ये हैं कार कैरियर्स हैं, इनका ट्रांसपोर्ट टाइम है 2.5 मिनट्स। दैट इज गिवन, टी आर आपके पास गिवन है ट्रांसपोर्ट टाइम। मेरे ख्याल में TN+1 कहते हैं या TR, आई डोंट नो, देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। द FMS प्रोड्यूस 3 पार्ट्स, सो देयर आर 3 पार्ट्स ABC, or anything you want to say, P1, P2, P3, 3 parts ABC. The part mix fractions and process routing for the 3 parts are present in the table given below. Part mix is given, part mix is here. A का जो part mix है that is 0.4, B का part जो mix जो है वो 0.35, और 3 का C का जो है ना 0.25. part mix मतलब PA, PB और PC, and sum of all, अगर इसको हम sum करें तीनों को तो इससे क्या आएगा, 1 आएगा। आप सम कर सकते हैं 0.4, 0.35 और 0.25। इसका मतलब है प्रोडक्शन में जो A पार्ट है वो 40% है, B पार्ट 0.35% है, और C पार्ट जो है वो 25% है। ये इसकी रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए इसका मिक्स कम है, ठीक है? फ्लेक्सिबल है ना, तो हम उसमें डिफरेंट वेराइटीज मतलब आ सकती हैं। A भी जा रही है, काम कर रहा है, B से भी चल रही है, C से भी चल रहा है। ऐसा सिस्टम है कि बस यार फ्लेक्सिबल, मैंने आपको बताया भी था एनी हाउ कि आप जो भी दे रहे हैं ना पार्ट मिक्स, वो उसको उसी टाइम में जो है ना प्रोसेस करके निकाल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है।
टाइम में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है एनी हाउ, लेकिन फिर भी इतनी चेंजेस नहीं करनी पड़ती, सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ता. दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. इसका जो ऑपरेशन के है, जो सीक्वेंस है, दैट इज 1 2 3 4. अगेन इसका भी 1 2 3 4 है, और इसका सी का 1 2. अच्छा, 4 स्टेशन कौन से? पहले लोड है, फिर मिलिंग है, फिर ड्रिलिंग है, और फिर अनलोड है. लोड, मिल, ड्रिल, अनलोड. लोड, मिल और अनलोड, इसमें फिर ड्रिलिंग पे नहीं जा रहा ये सी पार्ट जो है. स्टेशन जो है ये 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 1, राइट. प्रोसेस टाइम क्या है? अगर पार्ट ए लोडिंग हो रही है तो उस पर 4 मिनट लग रहे हैं, अगर इसकी मिलिंग हो रही है तो इस पर 25 मिनट लगते हैं, 10 ड्रिलिंग पे लगते हैं, 2 अनलोड पे लगते हैं. सिमिलरली ये भी इसके गिवन है, और इसके भी डिफरेंट डिफरेंट गिवन है. अच्छा, एफ आई जे के मतलब 1 इज मीन्स दैट कि जो पार्ट है वो हर एक स्टेशन पे सिर्फ एक दफ़ा जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, दोबारा दोबारा नहीं जा रहा. ठीक है, दोबारा तो अगर जाएगा एक पार्ट मशीन पे तो ये जो है ना आपका क्या होगा, ये मैक्स मिनिमम हो जाएगा, 0.3 0.4 हो जाएगा. लेकिन अगर वो जो है ना एक स्टेशन जो है ना, एक प्रोसेस जो है ना एक पार्ट पे हो रहा है दोबारा, या एक पार्ट जो है ना वो जा ही नहीं रहा, उसको बाईपास कर रहा है, तो उसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ओवरऑल एवरेज फ्रीक्वेंसी. अच्छा, अब क्या फाइंड करना है हमने, जो है ना ये चीज़ें फाइंड करनी है. द फर्स्ट इज मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट ऑफ द एफएमएस. होल प्रोडक्शन रेट जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब बॉटल नेक का जो है वही होगा एफएमएस का प्रोडक्शन रेट. करस्पॉन्डेंस प्रोडक्शन रेट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट. एक तो प्रोडक्शन रेट ऑफ द एफएमएस है, दूसरा हर एक पार्ट का जे जो है, जिस तरह ऊपर वो फार्मूलाज गिवन थे, हम फाइंड कर सकते हैं. आर ए, आर बी, आर सी भी फाइंड कर सकते हैं, और ओवरऑल आर जे भी फाइंड कर सकते हैं, आर टी भी फाइंड कर सकते हैं. थर्ड इज यूटिलाइजेशन ऑफ द ई स्टेशन, एंड फोर्थ इज द एवरेज यूटिलाइजेशन, एंड फिफ्थ इज द नंबर ऑफ बिजी सर्वर्स. ये सारे फार्मूलाज ऊपर गिवन है और ये यहाँ से इजीली फाइंड हो सकते हैं. अच्छा, ये 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स. हर एक का सीक्वेंस भी गिवन है, और हर एक की जो है ना ऑपरेशंस भी गिवन है, और प्रोसेसिंग टाइम्स भी गिवन है. नीचे आते हैं सोल्यूशन. The computations were performed using a spreadsheet calculator. So, with the results shows below, equation used to compute the entire is given in the top row of the table station to have the highest workload. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम bottleneck station find करेंगे. उसका तरीका क्या है कि उसमें हम वर्कलोड फाइंड करेंगे, जिसका सबसे मैक्सिमम वर्कलोड होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास बोटलनेक स्टेशन होगा. जाहिर बात है उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पर जो है ना हमारे क्या होगा, वर्कलोड मैक्सिमम होगा. तो सबसे पहले हमारे पास एक जो स्टेशन है दैट इज यूनिट लोड अनलोड. सेकंड इज फॉर द मिलिंग, थर्ड इज ड्रिलिंग, एंड फोर्थ इज द